Spirituality is your own authenticity, the real, truest self of you. Meet Master Vani Kabir, the founder of Evrenru. Her mission is to make spirituality simple. She survived domestic abuse herself, rebuilt her life from nothing, and at 32, a mystical mark appeared on her hand that changed everything. Today, we'll talk to her about how destiny is editable and how to reclaim your personal power. Is there a way to manifest something that you really want as your destiny? So, if you want to be the first person to swim the English Channel, you know the challenges, right? Right. फिर आपको वो सारे challenges overcome करने पड़ेंगे और फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगा ना. The moment you accept that, then you can achieve everything. I don't like when people spread fear. अरे वो तो काल सर्प दोष है. अच्छा इसके लिए आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, हम आपके लिए पूजा कर देते हैं. I don't get that. जहाँ से मैं आ रही हूँ और जहाँ से मेरी लर्निंग है वहाँ पे तो अपने मरते ही स्वर्ग मिलता है. मेरे को बहुत हेट्रेड मिलने वाला है इन सब चीज़ों के लिए. एक फिश बोल है और उसके अंदर एक फिश है और एक फिश है जो ओशन में है. तो फिश बोल वाली फिश जो है वो रिलीजन है. सारे बोलो जय माता दी. सबके लिए ईस्ट डायरेक्शन सही है. हाँ. सबके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए. जो फिश बाहर ओशन में है वो कह रहा है मैं नहीं मानता, मैं तो खुद ही करके देखूंगा. दैट फिश इज लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस. While the one in the bowl has been taught and conditioned to work like one. It takes the exact same amount of energy to be a victim and a warrior. The warriors are the ones, मेरी prediction है कि आपकी लाइफ के जितने भी अच्छे टाइम थे ना वो सब खत्म हो चुके हैं. I don't believe you. Hi. This is for you. How was your flight? The flight got delayed, the luggage was delayed, the hotel room was delayed. Oh my god, you still made it on time. So ये 3 of थोड़ी Hi. Hi. I have to first ask you before we begin, what should I address you as? You call me Vani Kabir, you call me Master Vani Kabir, you call me Vani, whatever. Okay, I'm going to call you Vani. Perfect. I don't know how old you are. You just look so vibrant and fresh. I just want to address you as a sister. So Thank you. But I am 40 years old. okay. So you are my younger sister. Yes. Welcome to Candid Confessions with Thank Chavi. you. I'm Thank very you. happy to have you here. And I do have a list of questions prepared for you. But the first question that I want to ask you, because you work so much in the field of healing, Yeah. एक बहुत ऐसा वर्ड बन गया है हील करना, जो हम आमतौर पे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि मैं हील हो रहा हूँ या मैं हील करना चाहता हूँ. सो आई वांट टू आस्क यू, ये हीलिंग होती क्या है? So पहले मैं ये बता देती हूँ कि हीलिंग क्या नहीं होती है. ओके. So crying in a therapist office is not healing. ओके. Just feeling lighter about a situation after talking to somebody or writing a journal is not healing. At the same time, doing a ritual and feeling lighter is also not healing. All of these are the symptoms of healing. ओके. The real healing is when you change your operating system that is running in the background of your subconscious mind and is taking all the decisions very silently. So it's like you're in 2026, but you're running on an operating system of 1996 where you were 6 years old, and that 6-year-old little girl is taking all the decisions of your life. शादी किससे करनी है, बच्चा कब करना है, जॉब करनी है नहीं करनी है, सुंदर दिखती हूँ नहीं दिखती हूँ, वो सब चीज़ें वो 6 साल की लड़की डिसीजन ले रही क्योंकि हमने वो ऑपरेटिंग सिस्टम कभी चेंज ही नहीं किया. ओके. सो अब उसको चेंज करने के बहुत सारे तरीके हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारे तरीके हैं. माई वे इज that I understand that if you do not recode yourself, my understanding of anatomy is not bone and flesh. Okay. My understanding of anatomy is DNA. Okay. And your DNA and your soul contracts and your ancestry is far longer than you think it is. And they all are summarized into you. Okay. You're a sum total of all the ancestors that you ever had. Even if you're a new soul, you would have 1440 ancestors minimum. So अगर आप थोड़े old soul हो तो वो और बढ़ता चला जाएगा, So all of those people, all the gods, all the pets that you've ever had in your previous lives, everyone is a part of your system. That's your soul tribe. And you carry it along. And so will your children and their children. And that's how it is going to go on. And your healing depends on this. Yes, your healing depends on this. Because
क्या हो रहा है ना छवि, बहुत सरफेस लेवल काम हो रहा है, यू नो, बिकॉज जैसे what do you mean surface level? सरफेस लेवल इज सिम्टोमेटिक रिलीफ. अच्छा, जैसे आप बोल रही हैं कि you feel relief by doing हाँ, something, you feel lighter मतलब and मैं then आज अगर एक चीज़ कर रही हूँ, मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे कहते हैं कि मेरा ना बैक पेन ही नहीं जा रहा है हम्म, ना, तो मैं मतलब विद माय कैपेसिटी, विद माय सिस्टम्स एंड माय थिंग्स, आई कैन से ओके छवि, आई जस्ट टेक वन सेशन, उसके बाद नहीं आएगा, okay, है ना. तो अब वो क्या है, वो बहुत सरफेस लेवल है. okay. Now the same thing, I will sit with you and I'll say, okay, Chavi, I'm going to give you 100 questions. You have to go back, do the homework, attempt 5 questions a day, send them back to me. I will draw the blueprint of what I see, and then I will call you. Okay. That much work no one is doing. And when I say no one is doing, I know as many healers as you can name. Hmm. I know their modalities, I know what they're doing, I know where they're coming from. Not saying that their knowledge is less or more, but most of them are working with symptom. The reason my healings work and one shot healings work is because I go to the root. So you're saying symptom as in backache here is a symptom, for Backache example. here is a symptom. So But are the you- problem here is the burden, the guilt. Now, if you look at your back, all the vertebrae hold one emotion. So I'm going to ask that person in those 100 questions, and वो मुझे अपनी लाइफ का सब अगला पिछला बताएंगे. It's like knowing your biography from you. So जब मुझे आंसर्स मिलते हैं, मुझे इतने इतने आंसर्स मिलते हैं, फिर मैं वो सारे आंसर्स पढ़ती हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं साथ साथ उसका चार्ट बनाती हूँ. फिर उसके बाद एक इमोशनल सिस्टम मैप बन के आता है कि ये इमोशंस बॉडी ने स्टोर कहाँ करे हैं. बचपन में ये हुआ, ऐसी मुझे ड्रीम आई, ऐसी मुझे ड्रीम बचपन में आती थी, फिर मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, या मेरा एक बॉयफ्रेंड था मुझे छोड़ के चला गया. वो सारा ट्रॉमा कहीं तो जा रहा है ना, और कहीं मतलब बाहर तो जाएगा नहीं, तो बॉडी में ही है ना. अब आपको कैसे पता कि कौन सा बर्डन आपके बैक पे है? Okay. राइट, हाउ वुड यू नो? आई अंडरस्टैंड, यू नो, हीलर्स नो दैट ओके बैकएक है तो ये बर्डन होगा, या गिल्ट होगा, या शेम होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिपेंडिंग अपॉन क्या है. ऊपर है तो बर्डन है, नीचे है मतलब तो गिल्ट है. ये एक बेसिक जनरलाइजेशन ये होती है जनरलाइजेशन कि बैक है तो ये चीजें हो सकती है. यस Okay. यस. सो ये एक जनरल एनाटॉमी, एनर्जेटिक एनाटॉमी जिसे हम बोलते हैं, ये सबको पता होती है कि अगर शोल्डर लेवल पे है तो बर्डन है, थोड़ा सा मिड लेवल पे आ जाएगा तो सपोर्ट आ जाएगा, उससे थोड़ा सा नीचे चला जाएगा तो शेम और गिल्ट वाले इमोशंस आ जाएंगे. अगर आप इसमें से कोई भी इमोशन होल्ड ऑन कर रहे हो और बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हो, अच्छा. तब वो आएगा. Okay. ऐसे ऑफ एंड ऑन एक बैकएक आ गया, 15 दिन रहा, 20 दिन रहा, वो नहीं है. बॉडी अपने आप भी तो कुछ चेंजेस कर रही है ना. बट इफ देर इज समथिंग विच इज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड यू डोंट हैव अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर इट, देर इज ऑलवेज एन एनर्जेटिक एक्सप्लेनेशन फॉर इट. एंड रादर देर इज एन एनर्जेटिक एक्सप्लेनेशन बिफोर द मेडिकल एक्सप्लेनेशन, because your body always tells you about what is going to happen. What It is will going always to happen. announce. Okay. Always announce. Even अगर आपको जुकाम भी होने वाला है, अगर आपकी बॉडी की अवेयरनेस इतनी ज्यादा है, तो आप उसे ऐसे कैच कर लोगे. हाँ, like you start feeling that something is coming. Is that Your what you're body trying talks say? to you. Right. You start listening rather than feeling. So what is happening is that okay, बैकएक में सबको पता है बर्डन है, तो वो उसे हील कर देंगे, टेम्परेरीली उसका रिलीफ आ जाएगा, 1-2 महीने आपका सिचुएशन ठीक चलेगा. लेकिन पीछे की प्रोग्रामिंग तो चेंज ही नहीं हुई ना. वो तो फिर वही की वही है. वो बर्डन किस वजह से आ रहा है? व्हाट इज द पॉइंट दैट इज नॉट वर्किंग? यू नो, किसी इंसान की वजह से वो बार बार कॉज हो रहा है, या आप बार बार घूम फिर करके एक ही सिचुएशन में लैंड अप कर रहे हो, वेदर यू वांट इट और यू डोंट. सो अगर वो ही सिचुएशन हील नहीं होगी, तो वो ऑर्गन को आपने थोड़ा रिलीफ दे दिया, Okay. यू नो, बट अगेन इट विल कैच ऑन टू दिस. तो ये जो मोमेंटरी जो आप बोल रहे हो, जो शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल बैकएक का एग्जांपल लेते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है. होता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शॉर्ट टर्म ही होती हैं. अब जैसे कि मैंने घर शिफ्ट किया है ना, घर शिफ्ट किया तो मैं बहुत डिस्प्लेस्ड फील कर रही हूँ, तो माइंड फॉग होना नेचुरल है. ओके. है ना. अगर मैं उस समय एक साउंड हीलिंग सेशन लेने जाती हूँ या 2 साउंड हीलिंग सेशंस लेने जाती हूँ, तो उतनी देर में मेरा माइंड फॉग क्लियर हो जाएगा, 1-2 महीने में मेरा घर सेट हो जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद. दिस इज नॉट लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रॉमा. हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रोज के छोटे छोटे चीजें हो जाती है ना, लाइक ऑफिस में स्ट्रगल हो गया, यू नो, बच्चों के साथ कोई बात हो गई, फैमिली में कुछ हो गया, और वो फैमिली वाला एपिसोड 1 हफ्ता 10 दिन चला, और उस 1 हफ्ते 10 दिन में आपने अपने आप को स्पिरिचुअली बैलेंस करने के लिए अगर कोई हीलिंग ले ली या कोई मेडिटेशन कर ली, इट विल जस्ट हेल्प यू पास थ्रू दैट सिचुएशन विद मोर ईज. बट द लॉन्गर सिचुएशंस, एंड नॉट ओनली फिजिकली, अगर कोई इंसान ये कहता है कि मैं बचपन से ही एंग्शियस हूँ,
मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, मुझे क्रॉनिक डायबिटीज़ है, मुझे थायराइड जब मैं 11-12 साल की थी या था तब आ गया था, है ना? तो ये एक लंबा ट्रॉमा है जो एक लंबे इलनेस में जा रहा है। तो वो या सडन एक्सीडेंटल इलनेसेस जो आ जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, पता ही नहीं था, एकदम से आ गया। बिजनेस बिल्कुल ठीक चल रहा था, एकदम से डिप आ गया, है ना? मतलब एक इंसान का पता चला कि अच्छा इसने घपला कर दिया बिजनेस में और सब गड़बड़ हो गया एकदम। एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन, आई फाउंड आउट माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, यू नो। सो दीज आर एंसेस्ट्रल थिंग्स दैट क्रॉप अप। हम सबकी एंसेस्ट्रल फील्ड है। सो ऐसे इमेजिन करो कि हम एक फील्ड है जिसमें बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, ओके, और वो सारे वॉल्केनोज डॉर्मेंट है, और हम सबके साथ है, there's no one without it. Now in some cases with some people certain volcanoes will erupt, ओके, you know. So for example, I'll tell you a story. There was this child who turned 19. It was absolutely fine. 19th birthday था उसका, उसके पेरेंट्स ने उसको बोला तुझे जैसे मनाना है तो मना ले, और उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया, पार्टी वार्टी करी, सब बहुत ऐसे बियर वियर पिया, सब कुछ। 3 बजे के आसपास ही स्टार्टेड स्वेटिंग अ लॉट, एंड उसके बाद उसे चिल्स और फीवर आने लग गया, शिवर होने लग गया। तो उन्होंने सोचा कि बियर ज़्यादा हो गई होगी, एक्साइटेड ज़्यादा हो गया बच्चा, एंड थिंग्स लाइक दैट। दिस सिचुएशन कंटिन्यूड ऑन फॉर 2 months. अच्छा, Then after 2 months the situation worsened, that he wasn't able to sleep from 12 to 5, और रोज रात को 12 बजे से 5 बजे तक उसको सिर्फ शिवर्स होते थे, ठंड लगती थी और पसीना साथ में आता था, और ऐसे लगता था कि कोई चोक कर रहा है। ओके, तो उसके बाद उन्होंने उसके सारे न्यूरो स्कैन्स कराए, सब कुछ कराया, कुछ भी कहीं नहीं निकला, और ये करते करते 2 साल हो गए। ओ, आफ्टर 2 years, अब जब सब तरह से नहीं कोई मिलता तो लोग हमारे जैसे लोगों के पास आते हैं। हाँ, सो देन somebody came to a healer like me. This is a story in a book, and he said that there is some story in your lineage that has not been shared, and that is why you are chosen to share it. और करते करते उन्होंने 3 महीने उसके साथ काम किया, और करते करते वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे that there is a person who died in your family and your family is hiding it. ओ, So then he went back to the mother, to the mother's mother, to the mother's sister. करते करते ये पता चला कि उसके मदर के जो अंकल थे वो पोर्चुगल में थे और एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, और उस फैक्ट्री में रात को आग लग गई, ओ, और वो स्लिदर करके वहां से बाहर निकले चोक करते करते, और बाहर इतनी ठंड थी, you know, and he died when he was 19. ओ, Everything in the universe needs to come back to balance, whether it is karma, whether it is manifestation, whether it is a story which is untold, whether it is justice, whether it is revenge. सब कुछ अपना, यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ बैलेंस से मतलब है। उसका तकड़ी ऐसा ही रहना चाहिए, वो ऐसा ऐसा होगा तो वो आपसे काम करवा के उसको बैलेंस कर लेगा। but this is very confusing because I feel ki I, as an individual, all of us, we look at ourselves as a single entity. Yeah. And now you're saying that इतनी पुरानी ancestral जो चीज है वो भी आप carry कर रहे हैं on a certain level, and it can crop up any time. Yeah. So it makes me feel, is it even possible for me to heal in this lifetime? If you look at it like that, you have the strength and the power of 1440 ancestors behind you. Okay. If we inherit their eyes, their DNA, ऐसा कैसे होता है कि हम बोलते हैं ये बच्चा तो अपने परदादा जैसा दिख रहा है, तब तो हम क्वेश्चन नहीं कर रहे उस चीज को, लेकिन जब हमें प्रॉब्लम आ रही है तभी हम उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता था ना कि अगर हम ये सारे एंसेस्टर स्टोरी को साइड रख दें, जो लोग इस पे नहीं बिलीव करते, बीमार तो वो भी पड़ रहे हैं, हाँ, है ना? तो द आइडिया इज टू अंडरस्टैंड योर लीनिएज, टू टेक द बेस्ट ऑफ दैट लीनिएज. देयर आर 4 lineages that walk with us. उसमें से कुछ वेल एंसेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ बहुत अच्छी जी है, चाहे उनके पास पैसा था नहीं था, सक्सेस था नहीं था, लेकिन वो बहुत पीसफुल जिए. दे वर वेरी लाइट एंसेस्टर्स, जिनको हम अपनी लैंग्वेज में लाइट एंसेस्टर्स बोलते हैं. एंड देन देर आर अनवेल एंसेस्टर्स, जिनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ, यू नो, जिनका हस्बैंड जल्दी चला गया, यू नो, बच्चों की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डोमेस्टिक अब्यूज बहुत था, चीटिंग थी, you know, भाई में चीटिंग था, somebody got killed, murdered, you know, in that case. So when those are the situations, those are the unwell ancestors. So when we say that we are going to do a healing, we only identify that आपका कड़ी किसके साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और अगर किसी के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ है, we don't have to connect with any one of them.
neither the well nor the unwell. We just have to take the learning from them. It is like कि जैसे हम आज की डेट में गीता या महाभारत खोल के उसमें से लर्निंग लेते हैं, हम कहीं अटक जाते हैं, हम वो किताब खोलते हैं, उसमें से एक फ्रेज पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और हम सोचते हैं ओके दिस इज आवर आंसर. Right? Similarly, when you get stuck in the situation, you open the book of your ancestors and you just understand what went wrong nearly. And you just take a learning from there and you move forward with it. Okay. It is not about connecting with them. It is not Like, about... give me an example of the learning. For example, my father had, he was 21 years old and he had a stroke at the back, यहाँ पे ऐसे. Okay. तो उनको ना रात को ऐसा प्रॉब्लम होता था और वो मतलब he used to just get up and start moving and running here and there. It was quite hard for my mom. My mom and my father had got married only 3 months when they started. Okay. Now the learning here is that he could not process his father's death when he was 17 years old because that was a sudden death. Okay. So my grandfather passed away with a heart attack all of a sudden, like no warning sign at all. So for my father, that was very hard as a time to understand, and he was very close to my grandfather. And जब उनकी शादी हुई और उसके बाद क्या हुआ कि my grandmother was very aloof. She never took care of my father at all. And तो वो उनको सपोर्ट ही नहीं मिला जहाँ पे वो अपनी ग्रीफ निकाल पाते या शेयर कर पाते कुछ भी. When he got married to my mom, he found that space. But a lot of people think that the moment you find healing space or the moment you find safety, you are going to feel, oh, la la la, it is such a pretty space that I'm in. Absolutely not. Your body is going to revolt the moment you feel safe because उसको वो revolt करने का time ही नहीं मिला ना. Okay. तब तक तो वो सब कुछ hold on करके चल रही थी. Okay. क्योंकि कोई सामने था ही नहीं जहाँ पे वो फैल You're saying सके. that it's like kind of bottling up all your emotions and yes. it floodgates So the open when you moment get you that feel space. safe, the moment you start healing, आपका रायता पहले ज्यादा ही फैलेगा. Okay. और उसके बाद वो सिमटना शुरू होगा क्योंकि जब वो जगह खाली हो जाएगी फिर आपको लगेगा अच्छा अब तो मेरे पास इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं हील करने के लिए. जैसे एक पॉइंट आ जाता है जब हम बोलते हैं कि हम भगवान से क्या मांगे, है ना, कुछ है ही नहीं मांगने के लिए. यू नो ऐसे ही एक पॉइंट आ जाता है जब आप ये कहते हो कि अब कुछ है ही नहीं, क्या हील करूं. इतना मैंने अपने पे काम कर लिया. मैं आई ऑलवेज जोक एंड आई से कि लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी हैं कि अब मेरे में सिर्फ अच्छाइयां बची हैं. So it's just the same thing with healing. There comes a point when you heal so much and your ancestors you are the most powerful version of your ancestors. If you look at your lineage, your mother, your grandmother, your great grandmother, they all wanted to be you. They all wanted to have this life. They all wanted to be free. मैं अगर अपनी नानी को बोलती थी कि मतलब मैं हमेशा ऐसे लाइट कलर्स पहनती हूँ, मेरी नानी मुझे कहती थी फिक्के रंग पांदी है, इन्ना काम कर दिया. And for her, you know, like she used to tell my brother who stays in Amsterdam कि मैं तनु आवांगी मिलन, मैं ना एक दिन Amsterdam आवांगी. She doesn't even have a ration card. Forget about passport. Okay. So we are the most manifested, powerful version of all our ancestors. लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी गलत है. जैसे आपको डर लगा सुन के, वो डर इसलिए लगा क्योंकि हम फैमिली ट्री बना रहे हैं. सो इमेजिन करो ये आपका शीट ऑफ पेपर है, आप छोटे से बच्चों, आपको बोला फैमिली ट्री बनाना है. तो आपने यहाँ छवि बनाई, यहाँ छवि की मम्मी, यहाँ छवि के पापा, है ना, फिर छवि के पापा के मम्मी पापा, फिर छवि के मम्मी के मम्मी पापा, और ऐसे करते करते वो ट्री ऐसे बड़ा होता चला गया. What does this represent? That the whole burden of the ancestors is on you. ये अंडरस्टैंडिंग ही गलत है. You are the center. Your parents, your grandparents, your great grandparents, your pets, even the gods that you choose to, be in the religion. You choose to be born in a particular religion, get married in a particular religion, live a certain kinds. वो सब भी आप choose करो. लेकिन they are all spherical, which means you can give your strength to them and they can give their strength to you. No one is burdening anybody. They're just a shared strength platform. It's like a network of trees. Okay. So it's so beautiful that you can reach out to any of the ancestors and take that blessing. कितनी बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है अरे यार आज तो बाल बच गए, है ना, आज तो एक्सीडेंट होते होते बच गया. किसने बचाया? Who was sitting on your shoulder? Who was sending you a blessing? Even if you think it is, if you believe in Ganpati, you say, okay, it was Ganpati Bappa. Still, he's your ancestor only. But this is a very beautiful perspective, but it also makes me think कि because of where I'm
born today, everything is pre-decided for me because of what my ancestors have done. My destiny is already, it's already been written, and there's nothing I can do because suddenly somewhere सब अच्छा चल रहा है और suddenly कुछ हो जाएगा. Is that true? What do you think destiny is? Okay, if I just have to ask you, एक कोई भी हाँ. one word बोल दो उसको लेके. Destiny equals to what? किस्मत जो हम जो एस्ट्रोलॉजी में जो हमें बताया जाता है हमारा जो Okay, so let's chart take होता this है. as destiny is a contract, Okay. and that contract is done with your entire lineage. That this is what you're going to do. This is where you're going to get born. This is going to be. These are going to be your parents. अब उस contract का एक draft है सिर्फ. Final नहीं है कुछ भी. उस ड्राफ्ट में कुछ चीजें जो हैं वो परमानेंट मार्कर से लिखी हुई हैं. जैसे कि आपके पेरेंट्स जिन्हें आप चूज करोगे, जिस सिटी में आप बॉर्न होगे, किस टाइम पे आप बॉर्न होगे. जिस टाइम पे आप बॉर्न होते हो ना, यूनिवर्स एक फोटो ले लेता है उस सेकंड की, एंड दैट बिकम्स योर मैप. कि अच्छा ये एक रेफरेंस पॉइंट है मेरा इस इंसान के लिए कि इसका पिछला जन्म कैसा था, अगला कैसा होगा. वो एक रेफरेंस पॉइंट पिक्चर है. इट इज नॉट एवरीथिंग. ओके. एंड दिस इज वेयर वी ऑल गो रॉन्ग. दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट पीपल कम एंड आस्क मी कि अगर डेस्टिनी में सब कुछ लिखा है तो हम मैनिफेस्ट ही क्यों करें, और अगर मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो डेस्टिनी का क्या रोल है. ईदर वे. सो अगेन डेस्टिनी इज अ ड्राफ्ट जिसके अंदर कुछ चीजें परमानेंट मार्कर से लिखी हुई हैं, कुछ चीजें सिर्फ ड्राफ्ट है कि ये देख लो, डिवोर्स होना है नहीं होना देख लो. अच्छा. है ना, ये वाली बीमारी झेलनी है नहीं झेलनी है देख लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी मॉम को डायबिटीज है तो नेसेसरी नहीं है मुझे भी होगी. चांसेस हैं, है ना. तो चांसेस को अगर मैं पहले ही मेरी मॉम को डायबिटीज हुई जब मैं 30 इयर्स की थी. अब मैं 30 इयर्स से ही विजिलेंट हो गई, है ना. मैंने उसके सारे प्रिकॉशंस, उसकी सारी चीजें लेनी शुरू कर दी, तो मैंने उस चीज को फ्लिप कर दिया. आई एडिटेड माई डेस्टिनी. इफ देयर इज समबडी हु इज ओबीज इन द फैमिली, या ओबीज पेरेंट्स के बच्चे हैं, दे कैन चूज टू बी फिट. दैट्स वेयर दे एडिट द डेस्टिनी. क्योंकि डीएनए के हिसाब से कुछ चला आ रहा है ना, लेकिन वो ड्राफ्ट स्टेज पे है, वो परमानेंट नहीं है. परमानेंट सिर्फ आपका लाइफ और डेथ है. ये धागा और ये धागा, ये फिक्स है. पेरेंट्स फिक्स्ड है, आपका सिटी फिक्स्ड है, आपका रिलीजन फिक्स्ड है जिसमें आप बॉर्न होगे. लेकिन रिलीजन में भी चॉइस है that later on if you don't want to follow it. I am a Sikh, I was married to a Hindu Gujarati. Then if you ask Kabir, he has no religion. So it's just choices. But or tell me, manifestation. जैसे कि for some people we see that they really work hard, like you're saying कि जैसे मुझे डायबिटीज के chances हैं, so I rectified my ways, Yes. my lifestyle, and I kind of flipped my destiny there. Yes. It could have Yes. happened, but now it won't. Simple. Sounds simple. Now, I've seen so many, let's take the example of Mumbai, where so many people come on a daily basis to become actors. Yeah. They're talented. Yeah. They've done their studies. Yeah. They've done their theater courses and all of that. Yeah. And they are struggling. They are really hardworking. Yeah. मगर उनको ब्रेक ही नहीं मिल रहा है. Okay. वो लगे हुए हैं. तो is it true कि इनकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा? मैं इसको बोलती हूँ 3 नॉक थ्योरी. पहला नॉक, ठीक है, छवि को एक पहला नॉक आया, छवि ने वो अपॉर्चुनिटी पकड़ी, एक छोटा सा एड था, वहां से शुरू हुआ और चीजें रोल ऑन होती चली गई इन योर डेस्टिनी. एक है 2 नॉक आए और छवि को एक रोल मिला, और छवि को फिर उसके बाद थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, थोड़े जुगाड़ लगाने पड़े, थोड़े लोगों के साथ दोस्ती करनी पड़ी, थोड़ा कुछ करना पड़ा, मतलब थोड़ा एफर्ट डालना पड़ा, और उसके बाद वो चीज़ रोल ऑन में आ गई. बट उसको टाइम लगा, जिसको लोग कहते हैं कि मुझे 10 साल के बाद ब्रेक मिला, या मुझे 15 साल के बाद मेरा ब्रेक मिला, राइट. एंड द थर्ड इज द 3 नॉक थ्योरी. वो 3 नॉक्स हुए और आप करते ही चले जा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा. दैट इज नॉट इन योर डेस्टिनी. Okay. Then you can finally decide that this Absolutely. is, I'm not built for Absolutely. Because अगर आपको resistance मिल रहा है हर तरफ से, it is not in your destiny. The universe doesn't want to punish you. There is no concept of punishment. और suffering का भी नहीं है. ये suffering का concept हमें astrology से मिला है, दान में, कि suffering तो है ही तुम्हारी life में, लेकिन क्यों है? I can choose to do things in the easy way also ना. मैंने एक चीज ट्राई करी, मैं डांसर बनना चाहती हूँ, है ना, और मैंने डांसिंग ट्राई किया. मैं डांसर तो बहुत अच्छी बन गई, लेकिन मैं फेम और सक्सेस नहीं ले पाई उसमें. सो शायद मेरा रोल डांसर ही बनना था, राइट. जब मैंने अपनी डेस्टिनी में चूज किया, तो मैंने ये चूज किया दैट आई नीड टू एक्सपीरियंस इमेंस लव इन माई लाइफ. अब वो लव 3 लोगों का भी हो सकता है और 3 मिलियन लोगों का भी हो सकता है, right? That is how I will manipulate or challenge my destiny or edit my destiny to work either ways. But I have a question here. Yeah. कि आप
three knock theory makes a lot of sense. But how do I know in the moment that this is my first knock and this is my second knock and this is my third knock? Because in retrospect, if you look at it, if I look at my own life today, in retrospect, I was always supposed to be a singer. I was a child prodigy when I was a born singer. I'm a master's in Indian classical music. My destiny was to become a playback singer. How do you decide that your destiny was that? It Because was- it was told to you. That's exactly what I'm Yeah. saying. It was told to me. I was, shining everywhere. There's not a Absolutely. competition that I lost. There's not an opportunity that I missed out on. Yeah. Yet I became an actor. Yeah. Okay. I had that opportunity also. Yeah. I took that opportunity also. I shone there, and that's why I stopped singing. Now, when I look back in retrospect, I feel this was my path. मैंने तो चूज कुछ नहीं किया, ना तो मैंने सिंगर बनना चूज किया था, ना मैंने एक्टर बनना चूज किया था, Okay. ना ही मैंने पॉडकास्टर बनना चूज किया था, या ना ही मैंने चूज किया था कि मैं Who's making SIT those start. decisions then? It's just happening. In retrospect, I know that this was an opportunity that came my way and I grabbed it. Yeah. But in the moment, I don't know where this is going to go. Is this an opportunity? Because people don't sit with themselves. हमें नॉइज में ही रहने की आदत है ना. तो नॉइज में मान लो अभी इस कमरे में इतना शोर होना शुरू हो जाए और बाहर कोई दरवाजा पीटता रहे, आपको सुनाई देगा? उसके लिए साइलेंस चाहिए. जब आप रिपीटेडली किसी भी सिचुएशन के अंदर बार बार जा रहे हो, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट कर रहे हो, इट्स द टाइम टू टेक अ स्टेप बैक, टेक अ पॉज कि अभी मैं 2-3 दिन कोई डिसीजन नहीं लेने वाली हूँ. Okay. आई एम गोना गिव माई सेल्फ द टाइम एंड आई एम गोना रन थ्रू. जो रेट्रोस्पेक्ट आप बाद में जाके ऑटोमेटिकली हो रहा है आपके साथ, हाँ. उसको आप जबरदस्ती कर रहे हो अब अपने साथ. Okay. वेन यू डू दैट जबरदस्ती, यू सी ये होने वाला भी है, ये हो चुका भी है, ये तो पहले हुआ था, ये तो ऐसे हो रहा है, मेरा ये डिसीजन था. यू विल बी एबल टू सी ऑल ऑफ इट एंड देन यू विल नो इट्स द फर्स्ट और द सेकंड और द थर्ड नॉक. And like in your example, when you say that you were all set to be like, a classical singer, but maybe in your contract, you chose to be loved by millions, and that classical singing path would have taken you longer to reach there. This opportunity would have taken you shorter. Our mind is not capable of creating a thought. Okay. It's scientific. We cannot create a thought. Okay. If I tell you right now, Chavi, create a thought, you will only attract thoughts. No mind is capable of creating a thought. So अब आपकी जो स्टेट है, आप उस स्टेट के हिसाब से थॉट्स को कैच कर रहे हो. अब सपोजली मैं बहुत सैड हूँ, तो मुझे सैड गाना ही सुनना है, मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे वो सारे काम करने हैं जो मुझे और ऐसे ही लेके जा रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि नहीं मैं बेटर फील करूंगी उससे, लेकिन मैं बेटर नहीं फील कर रही हूँ उससे. Right? But at the same time, the day that I'm super productive, nothing is going to matter. I will be like, fut, the decisions will happen faster, things will move, and Yeah. by the end of the day, you'll think कि मैंने एक हफ्ते का काम एक दिन में कर लिया. Correct. Right? Which brings to the conclusion that time is an illusion. Okay. Right? When you are sad, it runs slow. When you are upset, it runs slow. It does not run the same for everybody. I can be at a different time tangent sitting right in front of you, and you can be in a different timeline right in front of me. That is why they say it is quantum jumping. That when two people meet, if you're in a good space and I'm in a bad space, and you bring the good space to me, either I will bring you to my timeline, and either you will bring me to your timeline. राइट या तो हम दोनों खुश हो जाएंगे और आप बोलोगे छोड़ो ना, क्या सोच रहे हो यार, ये तो कोई बात ही नहीं है सोचने के लिए, है ना. या मैं आपको बोलूंगी और आप बोलोगे अरे यार हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेरी लाइफ भी इतनी ही टफ थी. तो क्योंकि हम दुनिया में कोई भी इंसान जो है वो बहुत लंबे टाइम के लिए सेम टाइमलाइन पे नहीं होता. एंड द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दीज निक्स एंड नैक्स ऑफ द यूनिवर्स, वो ट्रिक्स हैं सारे ना. तो जैसे हमें वो ट्रिक्स समझ में आने लग जाते हैं, हमारे फाइट्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी चीज़ें सब चेंज हो जाती हैं. मेरे पास इतने लोग आते हैं जो रिलेशनशिप को लेकर के सफ़र कर रहे हैं, और मैं उनको यही बोलती हूँ कि तुम्हारा 5 साल का वर्जन और उसका 8 साल का वर्जन लड़ रहे हैं, तुम दोनों नहीं लड़ रहे हो. क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए थी, इसे रिकग्निशन चाहिए था, दोनों आज भी उसी चीज़ के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं. सो दिस इज़ वॉट आई मीन गोइंग टू द रूट ऑफ इट, रादर देन बीइंग अ कपल थेरेपिस्ट एंड फिक्सिंग. तुमने ये क्यों बोला, तुम इसके अंदर पर्सनली नहीं लो, तुम इसको ऐसे देखो, तुम उसकी पास्ट को छोड़ दो, तुम एक गलती माफ कर दो. अगेन सरफेस इफेक्टिव है बट सरफेस है. जैसे ही वो थेरेपी बंद होगी, जैसे ही वो चीज़ें वापस जाएंगी, जैसे ही उससे मिलता हुआ एक और सिचुएशन आपके सामने आ जाएगा, आपको आता ही नहीं होगा ना उसे डील करना.
क्योंकि आपने घड़ा तो बनाया ही नहीं, आप तो बाहर से उठा के लेके आके रख दिया आपने। अब जब वो टूट जाएगा तो आपको दोबारा बाहर से ही लाना पड़ेगा, आप खुद नहीं बना पाओगे। करेक्ट। सो मेरा रोल सिर्फ यही है, और जब मैं बोलती हूँ दैट आई एम मेकिंग स्पिरिचुअलिटी सिंपल, इज दैट आई वांट टू गिव द पावर टू यू. We should, in this world, nobody should need healers unless and until they feel incapacitated to deal with their situation. In cases of loss, in cases of terminal illnesses, जहाँ पे वो अपना माइंड और बॉडी दोनों साथ में अलाइन करके नहीं चला सकते, माइंड अलग टेंजेंट पे चल रहा है, बॉडी अलग टेंजेंट पे चल रही है, देन यू नीड समवन कि किसी और की एनर्जी को हम यूज करके अपनी एनर्जी को ठीक करें. बट बाकी सब चीजें आप खुद ठीक कर सकते हो. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, और कोई बहुत बड़ी चौड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है. जो लोग कहते हैं कि अरे हमें तो बहुत साल लगेंगे इसको समझने में, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे. 1 से 1.5 साल अगर आप जेन्युइनली इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अपने आसपास नोटिस करने लग जाओ, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो इसको लेकर के, डोंट नीड एनीथिंग, एनीबडी. प्रेडिक्शंस आर द वर्स्ट, नेवर गो बाय देम. आई नेवर प्रिडिक्ट ऑन माई पेज. ओके. कोई प्रिडिक्शन नहीं है मेरे पास किसी को देने के लिए. कोई मुझे आके कहता मेरा हाथ देख लो, मेरा माथा देख लो, मेरी डेट ऑफ बर्थ देख के प्रिडिक्शन कर दो. नहीं, मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के आपकी सिचुएशन पता चल सकती है लाइफ की, कि आप इस समय अपनी लाइफ के कौन से एनर्जेटिक फेज में हो. बट उसकी कोई प्रिडिक्शन नहीं है. आई नेवर टेल पीपल कि अगर आप ये नहीं करोगे तो इसका नुकसान ही हो जाएगा. विच इज वॉट आई डोंट लाइक व्हेन पीपल स्प्रेड फियर. बिकॉज फियर एक ऐसा इमोशन है कि अगर आपने किसी के दिमाग में डाल दिया तो उसका निकालना बहुत मुश्किल है. सो आप मेरे पास आए, आपने आके मुझे बोला कि ये 2-3 प्रॉब्लम्स चल रही हैं मेरे साथ, और मैंने बोला अरे आपको तो काल सर्प दोष है, और यू नो जैक शिट अबाउट काल सर्प दोष, आपको कोई लेना देना नहीं है उससे. और फिर आप कह रहे हो अच्छा ये क्या होता है. फिर उसकी एक बहुत ही, हाँ, उसकी एक बहुत ही मतलब एंशिएंट हेरिडिटरी काइंड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन है, तो वो और भी आपको डरा दे रही है. फिर अच्छा इसके लिए करें क्या, अच्छा इसके लिए आप एक काम करिए, आप कुछ मत करिए, हम आपके लिए पूजा कर देते हैं, है ना. और हम जहाँ से मैं आ रही हूँ और जहाँ से मेरी लर्निंग है, वहाँ पे तो अपने मरते ही स्वर्ग मिलता है. हाँ, एग्जैक्टली. तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब मैं जाके एग्जाम दूंगी तो मेरे को नंबर मिलेंगे ना. हाँ, कोई और मेरी मेरे जगह पे behalf आप कैसे exam एग्जाम दे दोगे, है ना. Right. अगर मुझे आपके साथ भी काम करना है तो भी मुझे समझ में आ रहा है that I am doing something, you come and sit, put your energy to it, आप हाथ लगा दीजिए, हम कर देंगे. I don't get that. And I think that is where the spirituality part needs to become simpler, because you don't have to get onto a pahad to become spiritual. You know, you'll really miss out the point. जब आप आज चले जाओ पहाड़ पे, 30 साल जाके हिमालय पे बैठो, और 30 साल के बाद जब आप मर जाओगे, उसके बाद जब आपको आपका सोल लेसन बताया जाएगा, तो सोल लेसन यही है कि ये जो चल रहा है ना, इसके बीच में स्पिरिचुअल बनना है. तो सबसे पहले मुझे बताइए स्पिरिचुअलिटी क्या होती है. Spirituality is your own authenticity. It's just that. The real, truest self of you. जहाँ पे आपको कोई प्रिटेंस नहीं रखना पड़े, जहाँ पे आपको कोई फेस पुट अप नहीं करना पड़े, जहाँ पे आप जब नो बोलना चाहो नो बोलो, जब यस बोलना चाहो तब यस बोलो. यू डोंट हैव टू mollycoddle another person, you don't have to change, you don't have to compromise, you are just being the maximum version of yourself. But is that even possible in today's Absolutely society? possible. I have seen people, my masters, you know, they care two hoots about anybody. And But in is a it very good possible way. to be in the materialistic world and do that? They are in the materialistic world. Okay. My master from Amsterdam, she's married. She's facing real life issues with her daughter and her son. And still, she will laugh about her problems like no one's business. And she's like, अगर उनको कभी एंजाइटी आती है तो ऐसे बोलती है, अरे you are here again? Okay, come, let's sit, have coffee. She's genuinely talking like that. You know, she'll go out and she'll see a beautiful tree and she'll pause and she'll say, oh my God, you're looking so gorgeous today. Look at your flowers, look at your leaves. Oh, I didn't come on this path. And she's talking like that. She's not caring कि ये गाड़ी चला के जा रहा है जो साथ से, वो क्या सोच रहा है. और हम तो गाड़ी चलाने वाला तो बहुत दूर की बात है, हम तो शीशे में देख के खुद ही को जज कर रहे हैं. True. You know, we are not even waiting for someone else to come and do that favor for us. We are self-criticizing us. So that is what spirituality is. There is no path, there is no knock, there is no awakening, there is no enlightenment. ये सब हमें
रियलिटी से, सच्चाई से दूर करने के लिए बोला जा रहा है कि आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर मैं आपको आज बोलूं छवि, मेरी प्रिडिक्शन है कि आपकी लाइफ के जितने भी अच्छे टाइम थे ना वो सब खत्म हो चुके हैं। अच्छा, ओके। तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट बिलीव यू। बट देर आर पीपल हु हैव गिवन इनटू दीज काइंड ऑफ बिलीव्स। ओके। जो मेरे पास लोग आते हैं, किसी ने, देयर वाज दिस वुमन हु केम टू मी ऑन द कॉल, एंड मेरे तो सारे कॉल्स रिकॉर्डेड होते हैं। सो शी केम एंड शी सेड कि मास्टर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं सुबह उठ नहीं पाती, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मेरे को बेड से उतरने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, और मैंने सारे टेस्ट करा लिए, मैंने सब कुछ करा लिया और ये वो, मुझे कोई आंसर नहीं मिला। तो मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं पिछले जन्म में डाकू थी, मैंने लोगों के पैर काट दिए, इसलिए मेरे पैर नहीं चल रहे। ओह, And she's living with that belief for 2 long years and she's a single mom. No money. Like she said, मुझे 6 महीने लगे मेरे को ये पैसा इकट्ठा करने में, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला कि आपको आंसर मास्टर वानी कबीर के पास ही मिलेगा, हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाएंगे। And I told her, I said, you are educated? She said, yes. I said, how did you believe all this? कि तुमने किसी के हाथ पैर काट दिए पिछले जमाने में। मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम फॉर द चीटिंग वाला थिंग, सबसे पेटेंट आंसर्स जो हीलर्स देते हैं, आपने भी पिछले जन्म में उनको चीट किया था, इसलिए इस बारी आपको मिल रही है। It doesn't work like that. Universe is not playing tic tac toe or tit for tat. हाँ, ऐसा हो नहीं रहा है। वो किसी और का लर्निंग था, और ये आपका लर्निंग है। और अगर ये लर्निंग कंटिन्यू भी हो रहा है लीनिएज में, तो वो इसलिए हो रहा है ताकि वो उस लीनिएज को हम ब्रेक कर सकें। इट्स नॉट बदला लेने के लिए नहीं बैठा है कोई। यूनिवर्स इज नॉट टेकिंग अ रिवेंज ऑन यू, द यूनिवर्स इज नॉट पनिशिंग यू। लेकिन हम बचपन से यही सिखाते हैं ना, ऐसे नहीं करोगे ना तो भगवान पनिश करेंगे। बट ये बताइए कि मुझे बहुत से लोग ना बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं प्रेडिक्शन की, अगर आप बात करें कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सबसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये फ्यूचर ही क्यों होता है, ये प्रेजेंट कब होगा। ये फ्यूचर की वेट करते करते लाइफ निकल गई, बिल्कुल। तो ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं, किसी भी सूरत में, कोई ऐसी सूरत है जिसमें वर्क करती है कि आपके, मतलब आई एम सेइंग कि आपका नेम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ, आपका ये सब चीजें से कुछ ऐसी चीजें बनती हैं आपके चार्ट में जो 100% कंफर्म्ड होती हैं? मेरे को बहुत हेट्रेड मिलने वाला है इन सब चीजों के लिए जो मैं बोल रही हूँ। नो, कुछ भी कंफर्म नहीं है। कुछ भी कंफर्म नहीं है। जो मैंने आपको 4-5 चीजें बोली, सिर्फ वही परमानेंट मार्कर में लिखी हुई हैं। और उससे आपको लाइफ में डेस्टिनी से, यूनिवर्स से चॉइसेस मिलती हैं। जैसे लोग कहते हैं ये मेरा पर्पस ऑफ लाइफ है। कैसे आइडेंटिफाई करा पर्पस ऑफ लाइफ? आज मेरा पर्पस ऑफ लाइफ तो मुझे तो मेकिंग स्पिरिचुअलिटी सिंपल करना है, कल मेरे को कुक बनना है, परसों मुझे डांसर भी बन सकती हूँ मैं। करेक्ट। और तरसों में सब कुछ बेच बाच के एक फॉरेस्ट में विला लेके रह सकती हूँ। और ये सारे मेरे पर्पस ऑफ लाइफ बन सकते हैं। So you have to look at it from a very scientific perspective, which is what people miss when they're looking at spirituality, क्योंकि वो spirituality और religion को बहुत closely attach कर रहे हैं। Okay. Let's understand simple reason कि simple dynamics of religion and spirituality. एक fish bowl है और उसके अंदर एक fish है ना? और एक fish है जो ocean में है। तो fish bowl वाली fish जो है वो religion है। सारे बोलो जय माता दी। Okay. सबके लिए ईस्ट डायरेक्शन सही है। हाँ। सबके घर का मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। हाँ। है ना? तो ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट्स हैं जो उन्होंने एक मास के ऊपर लागू कर दिया और कहा कि सफरिंग तो है ही, तुम्हारा प्रारब्ध है, ये तो लिखा ही है, ये तो होगा ही, है ना? तो ये उन्होंने आपको बता दिया। जो फिश बाहर ओशन में है वो कह रहा है मैं नहीं मानता, मैं तो खुद ही करके देखूंगा, है ना? तो वो खुद ही जाता है, बचता है, चोट लगती है, कभी कहीं फंस जाता है, कभी बड़ी फिश खाने आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, एंड दैट फिश इज लर्निंग फ्रॉम देयर ओन एक्सपीरियंसेस, व्हाइल द वन इन द बोल हैज बीन टॉट एंड कंडीशन्ड टू वर्क लाइक वन। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। दैट इज द रीजन जो लोग रिलीजन से थक जाते हैं, है ना, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये समझ आने लग जाता है कि इस बोल में तो मेरा काम नहीं बन रहा। There is more to this, I don't think God can be that shallow कि जब तक आप 108 जाप नहीं करोगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा। हाँ, एक तरफ आप कह रहे हो भगवान मेरे पेरेंट्स हैं, तो आप क्या अपने पेरेंट्स को 108 बार ही बोलते हो कोई चीज मनवाने के लिए? तो क्यों करना है?
करना है अपनी इच्छा से, you want to sit in a meditative space, you want to create a discipline for yourself, you want to improve your throat chakra by chanting, absolutely go ahead and do that. Not out of fear. चलिया कर रहे हैं, फियर से कर रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, डर से जा रहे हैं, हमने मन्नत मांगी, अगर नहीं जाएंगे तो वो मन्नत उल्टी पड़ जाएगी. कैसे? You know, there's so much of fear being induced in Right. us. Right. We are injected It's with to it. tame us. Exactly. To Right. tame us. To put all of that into sare bolo. You know, because if they don't do that, each one of us is going to become individual. Right. Each one of us is going to become powerful. अब लोग कहते हैं कि अच्छा अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको क्यों बीमारी हो रही है? अरे हमने भी तो कोई एग्जिट प्लान करी है ना अपने लिए. You know, कोई जैसे बाबा रामदास थे. He was a very beautiful person. You know, he chose a stroke as his exit. You know, not that he didn't have a great life. He had a great life, great followers, traveled the world, you know, and he had a beautiful sanctuary to himself. And there he had a stroke and then he retired there. He says, अब मेरी life यही है बस. तो उनको बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपने दुनिया में इतने लोगों को अच्छा किया, इतनी ब्लेसिंग्स मिली आपको, फिर आपको इतनी बुरी बीमारी क्यों हो गई? तो कह रहे सोल के लिए कोई बीमारी अच्छी या बुरी थोड़ी है, वो तो एग्जिट रूट है. कुछ तो होगा ना, या एक्सीडेंट होगा या बीमारी होगी या सोते सोते चला जाऊंगा, कुछ तो चूज करूंगा अपने लिए जाने के लिए. बिना रीजन के तो आया भी नहीं और बिना रीजन के जा भी नहीं सकता. तो इट इज जस्ट दैट. The moment you start looking at things, that's why I'm saying, the moment you start looking at it scientifically, more than scientifically, quantum, you know, जो आज quantum physics बात कर रहा है वो spirituality हजारों साल पहले बता चुकी है. You know, there's this quote that says that wherever science is reaching today, spirituality is already sitting there. You know, somebody made a map of chakras thousands of years ago. Somebody made a map of Kundalini thousands of years ago. Today, that we call the cerebral spinal fluid, Right. that raises up and goes to your, you know, crown and then changes your anatomy and everything. ये सारी research आज चल रही है. लेकिन कुंडलिनी अवेकनिंग तो हजारों सालों से चल रहा है. किसने बताया? Somebody saw. Somebody was at that heightened level of intuition that they could see. But today, we are in a space where the fear makes the wolf bigger than it is. Correct. And everyone is playing on fear. So tell me something कि अभी आप कह रही हैं कि डेस्टिनी भी आप अपनी खुद बना सकते हैं, right? It's editable and nothing is permanent. Then you're also saying that there is the 3 knock theory कि अगर आप 3 opportunities में नहीं कर पा रहे हो तो maybe this is not your destiny at all. Maybe. Right? Is there a way to manifest something that you really want as your destiny? मैं चाहती हूँ ये हो, Yeah. तो मैं कैसे manifest करूँ उसको? मतलब the people say that talking and affirmations is just on surface level manifestation. Okay, That's not let me take what it. is manifestation? Let me take it. Let me take an example of Obama. Obama से पहले कोई black president नहीं था. ओबामा ने अपनी डेस्टिनी में या अपने मैनिफेस्टेशन में ये सोचा कि मैं पहला बनूंगा. ऐसे आप दुनिया का कोई भी पहला इंसान ले सकते हो, है ना, जिसने वो प्रथा, वो रीत या वो डोर ओपन कर दिया, है ना. लेकिन उसके लिए उसने कैसे मैनिफेस्ट किया? उसने वो सारे चैनल्स लगाए जो उस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए जरूरी हैं. Okay. From the education to public speaking to being at places to the sacrifices is needed, everything. If you want something that bad, you know, you will achieve it even after the third door, the third knock. But do you want to give that much time, that much energy, that much of your life to that is something that you have to decide. It is a choice. Okay. So if you want to be the first person to, you know, to swim the English Channel, you know the challenges, right? Right. फिर आपको वो सारे challenges overcome करने पड़ेंगे और फिर भी देखना पड़ेगा कि क्या होगा. ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगा ना. ओबामा ने क्या सोचा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? गोली मार देंगे ना. I'll die. The moment you accept that, then you can achieve everything. But if you have the thoughts कि नहीं यार कुछ और कर लेता हूँ शायद बेटर होगा, या कोई और इजी वे आउट ले लेता हूँ, या अभी ये कर लेता हूँ और बाद में बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, 3 साल जॉब कर लेता हूँ, पैसे सेव कर लेता हूँ, बिजनेस स्टार्ट कर लेता हूँ. These are very common things and there's nothing wrong. Neither this is wrong or right, neither that is wrong or right. मतलब basically if you have the contingency plans in your mind, then you're not 100% manifesting Also the it. spirit. Also the spirit. मतलब There's a वहाँ soul. जहाँ पे आपका contingency plan आया वहाँ डाउट तो पहले ही आ गया ना. नहीं जरूरी नहीं है. Okay. मैं आपको उसको एक्सप्लेन करती हूँ.
देयर इज द सोल एंड द स्पिरिट, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं. द स्पिरिट इज अ पर्सनैलिटी ऑफ द सोल, Okay. इट इज नॉट द सोल. Hmm. जैसे एक सोल है, जैसे मैं हूँ, मैंने बोला मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं काम हूँ, बहुत पेशेंट हूँ, बहुत प्रिसाइज हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, यू नो, तो ये मेरी पर्सनालिटी है. मैं नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी है. सोल है और सोल की एक पर्सनालिटी है स्पिरिट. अब स्पिरिट जो है वो 2 तरीके की होती है, वैसे 6 तरीके की होती है, लेकिन आज मैं 2 ही बताऊंगी, विक्टिम एंड वॉरियर. Okay. द वॉरियर्स आर द वंस जो नॉक्स पे बिलीव नहीं करते. अच्छा. वो कहते हैं यहाँ आए हैं, लेगेसी छोड़ के जाएंगे, चाहे जो हो जाए. Hmm. चाहे मुझे तुम 6 साल की उम्र में मार दो, मैं फिर आऊंगा, फिर करूंगा. ढीठ जिसको कहते हैं ना, है ना. आप मेरे को बीमारियां दे दो. स्टीफन हॉकिंग, Hmm. he was supposed to die in 2 years, Hmm. you know, he says whatever, as long as my mind is working, Hmm. I don't care what is happening to my body, Hmm. you know. हम तो बॉडी पे ही फोकस करके चल रहे हैं ना, Correct. राइट. उसने बोला मेरा जो भी लिमिटेशन है, मैंने वो सारे लिमिटेशन को आग लगा दी. Hmm. यू नो, दैट्स द वॉरियर स्पिरिट. द अदर इज अ विक्टिम स्पिरिट, Hmm. है ना. मेरे साथ हो रहा है यार, और कितनी मेहनत करूं, और कितना करना पड़ेगा मुझे, कितने साल लगेंगे मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए, लोगों का तो कितना अच्छा चल रहा है, उसने एक चीज करी वो तो फटाफट वहां पहुंच गया, मुझे तो 15 साल हो गए यही चीज करते हुए, मुझे तो कोई नहीं देख रहा है. तो अपनी स्पिरिट पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा ना, Hmm. है ना. मैं जैसे बोलती हूँ कि मेरे हाथ में वॉरियर का टैटू, वो गुदवाने से मैं वॉरियर बन नहीं गई. उसके लिए मुझे रोज काम करना पड़ता है. एंड समटाइम्स आई फॉल, समटाइम्स आई विन, but the more winning days that I have, the more on that side I'm changing my soul to. Hmm. Okay. And when you become a warrior spirit, Hmm. you can achieve anything in the world. जो लोग कहते हैं इलॉन मस्क ने एक लाइफ टाइम में इतना कैसे बना लिया, ऐसे कैसे कर लिया, क्योंकि वो वॉरियर स्पिरिट है. उसको क्या फर्क पड़ रहा है, वो नहीं सोच रहा उन सब चीजों के बारे में जिसके बारे में आप सोच रहे हो. तो जिन चीजों के एंड सोचने का मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस के बारे में नहीं सोच रहा है, या फैमिली के बारे में नहीं सोच रहा है, या उसके घर में कोई इश्यूज नहीं होंगे, सबके घर में है, यू नो. बट he is choosing to be a warrior because it takes the exact same amount of energy to be a victim and a warrior. Wow. Okay. Exact same. Right. Not even an ounce extra here or an ounce extra there. Wow. That's very interesting. I completely agree with that. And I completely believe in that. I think I probably am a warrior spirit because I do have that kind of perspective. कि ये तो करना ही है, मतलब this is how exactly. it is. But I want to ask you, talking about personalities, if you talk about the personality of people, let's talk about women. There are a lot of women who have this kind of fighter spirit when they are working. मतलब कट थ्रोट कंपटीशन में भी वो हमेशा विनर होती हैं, लेकिन घर पे आके they are a lot of times subjected to domestic abuse or emotional abuse at home, and they are okay with it. आप कोई अपने आप 1st to 10th क्लास में से कोई भी एक क्लास चूज करो, 7th, है ना. आपके 7th में कितने सब्जेक्ट्स थे, 6-7, उसमें से कितनों में आप बहुत अच्छे थे, मे बी 4, बाकी ठीक ठाक. you choose the subjects that you're going to be very good with. जिस चीज को आप कहते हो कि ये तो मेरे बैक ऑफ हैंड है, जैसे मैं बोलती हूँ कुछ भी क्रिएट करना मेरे बैक ऑफ हैंड है. मेरे लिए मैनिफेस्टेशन इतनी आसान है, जैसे मतलब मुझे कोई एफर्ट ही नहीं डालना पड़ता, क्योंकि मैं वो चीज बहुत सारे लाइफ टाइम से करती आ रही हूँ. राइटिंग इज माई फोटे. मुझे आप लिखने बिठा देंगे, मैं अभी 5 मिनट में एक पोइट्री निकाल के आपको दे सकती हूँ विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि मैं वो बहुत लाइफ टाइम से कर रही हूँ. तो वो मेरे बैक ऑफ हैंड हो गई. बार्गेनिंग स्किल्स, सेल्स स्किल्स, एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, सिंगिंग, ये सब हम बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अब आकर के हम उसमें परफेक्ट हो गए हैं. और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने अभी शुरू करी हैं. फॉर एग्जाम्पल रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, फॉर एग्जाम्पल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. जितने इंट्रोवर्ट्स हैं, जो हम कहते हैं कि ये तो बहुत शाय इंसान है, ये तो बहुत इंट्रोवर्ट इंसान है, उसने वो बाकी सारी चीज़ें मास्टर कर रहा था ना, इस वाले पे अभी आया है. तो इसलिए वो वाली चीज़ उसकी वीक है, उस पर वो काम कर रहा है. बाकी चीज़ों में वो बहुत स्ट्रांग है. जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत एंग्जाइटी है, मुझे भी बहुत हेल्थ एंग्जाइटी होती है, क्योंकि जब मैं लोगों के इतने हेल्थ इश्यूज सुनती हूँ तो मैं सब अब्जॉर्ब कर लेती हूँ. बट मैं हमेशा ये कहती हूँ मैं उस वाली चीज़ पे काम कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा वीक सब्जेक्ट है, उसमें मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है. बाकी मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा. बट इज दैट ओके?
Absolutely okay. उसका कोई Is is tell this, me one person who's good at all 5, 7 subjects. but are you saying that the woman who's going through this needs to work there? If she chooses to. If she thinks it is really something that she wants or he wants, you know, जैसे a lot of people come to me with mother's guilt. Okay. You know, वो कहते हैं हमें बहुत गिल्ट होती है कि हम अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हाँ, हैं, है correct. ना? Yeah. तो एक पुरानी सेइंग है जिसे कहते हैं दे टेक द बेबी आउट एंड दे पुट द गिल्ट इन. It's just that it's a part and parcel. You know, so it is your choice whether you want to address that as guilt or you want to address that as the purpose of your life or as something that you really want to do. Like when I see Kabir, मैं उसके साथ दिन में सिर्फ आधा घंटा spend कर पाती हूँ, just half an hour a day. But in that half an hour, I make sure that I tell him that Kabir, I'm doing something that a lot of people need. And this is the necessary damage that we both are going through. You know, so don't take it as that I don't love you, I don't spend time with you, I don't do things with you. It is just that I'm more spread across I'm not like I'm water, but not in a glass. I just am running through, you know, helping as many people as I can. And this is just the necessary things that we need to do for it. So then I don't have to work on that guilt because it's not there. Right. आप इमोशन को किसी भी तरीके से एड्रेस कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि हर इमोशन पे बैठ के आपको काम ही करना है. अगर आप उसे इग्नोर करना भी चूज कर रहे हो तो उसे कह के इग्नोर कर सकते हो कि बॉस देखो अभी मेरे पास इस लाइफ टाइम में मैं तुम्हारे पे नहीं काम कर रही तो मुझे बार बार मत दिखो. Okay. है ना, तो मेरे को इस वाले पे काम करना है अभी. Okay. This is what my primary forte is. Okay. Like in my life, I put love in the basket. I said ये वाली लाइफ में नहीं डिसाइड करी. मेरा when I got divorced, I kissed many frogs. Nobody turned into a prince. So उसके बाद मैंने ऐसे डब्बा बंद किया और मैंने बोला ओके दिस इजंट, ये वाला चैप्टर अभी वाले में नहीं खोलूंगी. इसको छोड़ देती हूँ, बाकी सब पे काम करती हूँ. सो इसको किसी और लाइफ टाइम में देखूंगी, किसी और सोल कॉन्ट्रैक्ट में खोलूंगी देखने के लिए कि क्या ये मुझे फिक्स करेगा या मुझे और ब्रेक करेगा या क्या होगा इसका. अभी मेरे लिए ये चैप्टर क्लोज्ड है. Thank you so much, Vani, for sharing all this with us. And my favorite part of the entire conversation today was the warrior spirit and the victim spirit. I think most of the time we are in victim spirit. Maybe sometimes we find that warrior within us, and maybe some of us are that warrior spirit forever, but most of us are victim spirits. So aap mujhe bataiye, after watching this whole conversation, what did you find the most interesting bit from it, and what did you relate to the most, and what is your biggest takeaway? Please put that down in the comments below. If you want to get in touch with Master Vani Kabir, I'll put the details down in the description. Please check it out and don't hesitate to reach out to her. If you have any questions, those also you can put down in the comments below. And don't forget to like and share and subscribe. You're watching Candid Confessions with Chavi. This is both of us signing out. Love and peace from us to you. Thank you. Thank you so much.